Barkati, if I could come to you first, sir. In a moment, we'll also be joined by activist Shazia Ilmi, social activist on the show. Are religious beliefs more important, Maulana Barkati, than saving lives? Whatever, can you give us details of what transpired in the Raza Academy meeting, in the Ulema meeting? Gaurav, let me make it clear that I was not present in the meeting. Okay. I was not present in the meeting which took place, and I came to know about the details of the meeting through newspapers, and I came to know about the fatwa issued by the Supreme Fatwa Council of the UAE, and many things about this latest controversy which is being raised on media about the presence of pork elements or ingredients in the Chinese vaccine. As you asked that whether everyone's religious teachings are important for the followers of that particular religion, whichever religion it may be, we respect that, and everyone is supposed to follow the religious teachings. So far as लेकिन उलेमा के पास वीटो होना चाहिए? नहीं सर, मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, उलेमा के पास वीटो पावर होना चाहिए कि अगर नहीं सर, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, लेट्स नॉट बीट अबाउट द बुश सर, लेट्स नॉट बीट अबाउट द बुश. अगर चाइनीज वैक्सीन में पोर्क इंग्रेडिएंट है, वैक्सीन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? Let me tell you, there are many more Muslim countries which are supposed to take their decisions about it. First of all, it is premature to say or forbid it even before it arrives. And there is our government and national body, the ICMR, which will give us the report about the content and about the ingredients in that vaccine. And if you ask me what the Quran, what Muslims believe religiously, according to Islamic scriptures, according to the Quran, according to the Sunnah, use of pork in any form, in anything, is strictly forbidden and haram. So therefore, if anything contains that particles of or bits of pork in it, it is not permissible, and Muslims will not be allowed to use it. Therefore, there is a अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को इजाजत नहीं होगी कि वो चाइनीज वैक्सीन ले अगर उसमें पोर्क है. ठीक है सुमाया राना, क्या आपका भी यही मानना है कि अगर पोर्क के इंग्रेडिएंट्स है? मौलाना साहब आपने बोल दिया, अब औरों को भी बोलने दीजिए. नहीं, मेरी बात अभी चाइनीज की नहीं, अगर किसी भी कंट्री से वो वैक्सीन आती है, if it contains the pork particles or elements or ingredients, then the Muslims will not be allowed. It is not lawful for them. This is unless and until there is such a condition where they are about to. नहीं, आप कह रहे हैं it is not lawful. किस कानून के तहत? किस देश के कानून के तहत? किस देश के कानून के तहत? भारत का कानून चलेगा कि कोई और कानून चलेगा? According to the Quranic law, according to the constitution has. अरे शाजिया इल्मी, भारत में कुरान का लॉ चलता है कि इंडियन पीनल कोड चलता है? हेल्थ केयर को कौन गवर्न करेगा? Every Muslim, every Indian citizen, sir, let me get Shazia Ilmi to respond. To follow and practice his religion. It is the provision of the Constitution of India. It is the provision of the Constitution जहां of the prohibited कह देते हैं, वहां पर ये prohibited एक अलग मायने आता है. But Shazia Ilmi, please respond, ma'am. मैं कहना चाहूँ religiously है. It is religiously prohibited for a Muslim. जी वो हम सब जानते हैं. He is not supposed to use that. सर आपने अपनी बात कह दी, अब आप 2 मिनट शांत रहिए. शाजिया इल्मी उत्तर दीजिए. First of all, I would like to ask the gentleman, the preceding speaker, with all respect, with utmost respect, बहुत ही एहतराम के साथ हम आपसे
सवाल पूछेंगे कि ये बात कि उसमें पोर्क का मीट है या कोई भी हिस्सा है या ग्रीस है, ये कहाँ से आई। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए इस बात को कि इसको जब भी कोई चीज होती है, वैक्सीन की बात हो रही है, आपको कैसे पता चल गया किस लेबोरेटरी के जरिए कि इसमें बाकायदा ये है, इस जानवर का ग्रीस है या चर्बी है। और दूसरी बात कि अगर आप ऐसे मौके पर जब वैक्सीन जरूरी है, आप ऐसी बातों पर इस तरह का भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर एक मजहबी रंग देकर, क्या आपको लगता नहीं है कि आप नाइंसाफी कर रहे हैं बहुत से मजलूम परेशान हाल लोगों को जो बाकायदा इस वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि बार बार ये इस जानवर की बात। Shazia ji, let me get Sumaya Rana to respond. Let me also bring in Sumaya Rana into this conversation. Maulana Barkati. And we have Maulana Barkati, give me a moment. Maulana Barkati, hold on. My request to all our guests is please respond when spoken to. Let's have a debate. Let's have a discussion. And this is a discussion, incidentally, that's happening not just in India, but across several countries. Remember, Indonesia sent a team of Islamic clerics to China. They sent clerics and ulema to various factories that are manufacturing these medicines so that they could declare whether the coronavirus vaccine is haram or halal. This discussion was also taking place in the United Arab Emirates. A discussion has also taken place amongst the Muslims in the United Kingdom. लेकिन सुमाया राना, उससे पहले आपकी इस पर क्या राय है? हेल्थ केयर ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों की जान बचे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, या इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना कि अगर इसमें सूअर का अंश है तो ये हराम है? देखिए, एक चीज बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं कि जितना मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि दोनों ही चीजें अपनी जगह मायने रखती हैं, क्योंकि अगर कोई चीज किसी रिलीजन में प्रोहिबिटेड है, अबेंडेंड है, तो उस पर कहीं ना कहीं उसको सीरियसली लिया जाएगा। लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ कि जब जो चीज अभी आईसीएमआर से बिल्कुल क्लियर नहीं हुई है, जहां पर ये चीज अभी क्लियर ही नहीं है कि उसमें पोर्क जैसी कोई चीज है, उसका जिलेटिन है कि नहीं है, उस पर हम फालतू की बहस ही क्यों कर रहे हैं? एक चीज बरकती साहब, आप ये बताइए, क्या ये बात फालतू है? क्या ये बात फालतू है कि इंडोनेशिया के उलेमा चीन गए, फैक्ट्री देखने गए, और एसोसिएटेड प्रेस ने एक रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने चीन से उत्तर मांगा कि क्या कोरोना वायरस वैक्सीन में सूअर का अंश है, तो चीन से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तो ये प्रश्न है, तो सुमैया राणा जी उत्तर दीजिए इस बात का। मैं वही बता रही हूँ मैं आपसे। प्लीज अनम्यूट हर। सर, इंडिया टुडे पे कोई म्यूट नहीं होता, आप अनर्गल बातें ना करें। इंडिया टुडे पर कोई म्यूट नहीं होता, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। अभी मैं बता रही हूँ, मुझे आप सुनिए, आप भी। इट्स वेरी गुड। मैं बोलूं जी? मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग भी वहां से इंडोनेशिया से और चाइना गए ये पता करने के लिए, बिल्कुल जाना चाहिए कि जो चीज अगर इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, अबेंडेंड है, तो उसके बारे में हम ये पता तो करेंगे कि इसमें कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो हमारे अंदर जाके हमारे ईमान को खत्म कर दे। एक चीज मैं बार बार ये कह रही हूँ कि एक तो पहले हमें इस चीज का, हमारे मुल्क के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, इंतजार करना चाहिए कि आईसीएमआर क्या बोल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अब अगर उसमें मान लीजिए कि पोर्क के अवशेष हैं, जिलेटिन मिला हुआ है, तो ये काम मजलिस शूरा का है, मिल करके इत्तेहाद से सारे उलमा को एक साथ बैठ करके इस बात पे एक रिजल्ट निकालना चाहिए कि जो मौजूदा हालात है, जो डेडली सीन्स हम देखते हुए आ रहे हैं मार्च के बाद से इंडिया के अंदर, उसमें इस कोरोना वायरस को मारने के लिए जो वैक्सीन आ रही है या बचने के लिए जो वैक्सीन आ रही है, उस पर हमारा इस्लामी नुक्ते नजर क्या हो सकता है? इस पर बहुत हड़बड़ी, बहुत वावेला मचाने की जरूरत नहीं है, जैसे जमात के मरकज के लिए कर दिया गया था। तो वो सब माहौल बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी तरफ से। इसको सीधा अच्छा, सा एक आप माहौल की बात कर रहे हैं। नहीं सुमैया राणा, देखिए यहाँ बात तथ्यों पर होनी चाहिए और माहौल पर नहीं। बात तथ्यों पर होनी चाहिए, और